Hello my dear students, how are you all? I hope you all fine. So what we will study? Today's topic is revision. We will do the revision of chapter 2 and chapter 3. Chapter 2 and chapter 3. Do you know the name of chapter 2? You must know the name of chapter 2. You just don't remember only chapter. You should know the name of chapter. Chapter 2 name is whole number. And chapter 3 name is playing with numbers. Okay, we have to do the revision of chapter 2 and chapter 3. The name of chapter 2 is whole number and chapter 3 is playing with numbers. Let's see some example. In chapter 2 you already have studied distributive property, commutative property, associative property, additive inverse. These property you have already studied in that, but here I'll do just a recap, just a revision of that. Okay, let's do. What is distributive property? First we will see what is distributive property. See, it is A multiply C plus D. A multiply C plus D. यहां पर अगर प्लस है then here we can also write as minus. यहां पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है. अब what we will do if we have to expand it? We have to expand it. What we will do? We can write A multiply C. A multiply C plus और माइनस A multiply D. क्या होगा? ये A C में मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी होगा माइनस भी, और एक से मल्टीप्लाई होगा D में. This is called a distributive property. This is called a distributive property, and most of the question in your exercise is based on distributive property only. Okay, I hope you all understood the distributive property. You will be more understanding this by seeing an example. Okay, let's see some example. 15 multiply 102. This is the question. You will say, sir, this is very easy question. We can do it. But you don't have to do simple multiplication. You have to use a property to solve it. And which property it is? Come, we'll see. 15 multiply 102. We can break 102 between 100 plus 2. हम लोग 102 को ब्रेक कर सकते हैं 100 plus 2 में कर सकते हैं. अब देखिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बताई थी आपको? A मल्टीप्लाई B प्लस C. याद आया? प्लस भी हो सकता है माइनस भी. अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 इंटू 100 प्लस 15 को 2 से करेंगे. 15 इंटू 2 1500 प्लस 30. It will be 1530. Like this you have to do this question by using a distributive property. I hope you all understood. Understood or not? Understood or not? Understood? Okay, let's move to another question. I'll give you one more example. If a question is like this, 45 multiply 65 plus 45 multiply 35. This is the question. You have to solve it using a property. You have to solve it using a property. Direct multiply नहीं करना है. Don't do it. Use a property. मैंने आपको property बताई थी अभी. Just अभी 1 second पहले. Can anybody tell me? Yes, right. Distributive property. Very good. So we have to take 45 common. Then here will be 65 plus here will be 35. तो क्या हो जाएगा? 45 multiply 65 35 100. Then answer will be 4500. Using a distributive property we can solve this question. Let's move to another question. I hope you all have understood. Yes or no? Can't hear you. Yes? Yes, that's good. Now we'll see additive inverse. We'll see additive inverse. What is additive inverse? Additive inverse क्या होता है बेटा? कोई नंबर दिया है उसका अपोजिट नंबर लेंगे तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए. आंसर हमारा क्या आना चाहिए? 0. अगर मैंने पूछा कि -5 का एडिटिव इनवर्स बताइए तो आप क्या बताएंगे? अपोजिट 5. जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा? 0. मतलब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर गिवन होगा उसको अपोजिट साइन. नंबर सेम रहेगा, डिजिट सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा. अगर बोलूं +18 का निकालो तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर -18. I hope you have understood. One more property I will tell you. Commutative property.
कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, व्हाट इज कम्यूटेटिव? 2 + 3 करेंगे तब भी आंसर 5 आएगा. If we add 2 + 3 then also answer will come 5. If we do 3 + 2 then also 5 will come. मतलब अगर हम डिजिट की प्लेस चेंज कर देंगे तब भी आंसर सेम ही रहेगा. 2 + 3 करेंगे तब भी आंसर 5 आ रहा है. 3 + 2 कर देंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा ना. मतलब डिजिट्स की अगर जगह चेंज कर दें नंबर की, आंसर में चेंज नहीं आता. लेट्स सी नाउ. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड this commutative property, distributive property and additive inverse. Now we will see some questions of playing with number chapter 3. Okay, how to find the factors? First is factor. मुझे 12 नंबर दिया है, मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं. मैंने क्या बताया था फैक्टर कैसे निकालते हैं? You have to just find out the number जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. हमें वो नंबर निकालना है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. और मैंने 2 नंबर ऐसे बताए थे जो फिक्स रहेंगे. क्या? Tell me fast. Yes, yes, very good. 1 and itself. मतलब 1 और खुद सेम रहेंगे. ठीक है. अब बाकी हमें निकालने नंबर. 12 किससे डिवाइड हो सकता है? गैस करते हैं. Yes, 2, 3. Yes, 3. 4. Yes, 4. 5. No. 6. Yes. 7, 8, 9, 10, 11. No. Till 12. These are the factors. Factors वो होते हैं जिस नंबर, वो नंबर हमें लिखने होते हैं जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो. Now see multiple. What is multiple? We have to find the multiple of 5. हमें 5 का multiple निकालना है. Just read out the table. Just read out the table of 5. टेबल रीड कर दीजिए, आपके मल्टीपल निकल आएंगे. 5 पूछे तो 5 बार 5 निकाल. मैंने मुझे बोला मुझे 3 मल्टीपल निकालना है 5 के. कैसे निकालूंगा? 5, 10, 15. 3 मल्टीपल निकल आए. मुझे बोले 4 मल्टीपल निकालो 20. मुझे बोला कोई 5 निकालो. This is the multiple. Okay. Now we see what is prime number. Now we will see what is prime number. Prime number बेटा वो होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं. जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं. जैसे मैंने बोला 3 1 से जाएगा और खुद से जाएगा, प्राइम नंबर. 2 बोला 1 से जाएगा और 2 से जाएगा. 1 सुनिए, 1 ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट. दिमाग में डाल लीजिए ये बात. 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 1 ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा. दिस कीप दिस इन माइंड. और प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या फिर 1 या फिर एक्सेल. जैसे 2 और 3 और भी हो सकते हैं. 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, सो ऑन. अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. मतलब इनके 2 से ज्यादा दोस्त हो जाएंगे. 2 से ज्यादा दोस्त हो जाएंगे, फ्रेंडशिप. 2 से ज्यादा दोस्त, फ्रेंडशिप. कंपोजिट नंबर जैसे बोला 4 के फैक्टर क्या सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है. मतलब 1 भी है, एक्सेल भी है और एक बाहर से आदमी भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर. ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. नाउ व्हाट इज को प्राइम नंबर? व्हाट इज को प्राइम नंबर? अब को प्राइम नंबर क्या होता है हम लोग देखते हैं. को प्राइम वो नंबर होते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनके कॉमन में सिर्फ 1 एज अ फैक्टर आता है. जिनके कॉमन में सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर आएगा, जिनके बीच में 1 एज अ कॉमन फैक्टर आएगा, उनको को प्राइम बोलते हैं. लेट्स सी एग्जांपल. मैंने बोला आपको 5 और 7. 5 के फैक्टर निकालें, 1 और 5. 7 के निकालें, 1 और 5. 1 और 7. तो क्या कॉमन आया? सिर्फ 1. तो ये को प्राइम होगा. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैंने ले लिया 4 और 6. तो जैसे 4 और 7 ले लिया. 4 का क्या आएगा? 1, 2, 4. और 7 का क्या आएगा? 1 और 7. क्या ये हो सकते हैं को प्राइम? सिर्फ 1 एज अ कॉमन फैक्टर हो सकता है. सिर्फ एक ही तो कॉमन आ रहा है, तो हो सकता है. सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए, सिर्फ 1. इसको को प्राइम नंबर बोलते हैं. नाउ लेट्स सी सम डिविजिबिलिटी टेस्ट. डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने आपको बताए थे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का. सबका बताया था. आधे बच्चों ने वो ऊपर से चले गए, हमें लगा 2 से लेके 11 तक का बताया था बेटा आप लोगों को. ओके, सुनाई दे गया मुझे. यस. नाउ व्हाट, जस्ट वी विल डू अ रिकैप ऑफ दैट. ओके, 2 से अगर डिवाइड करने से नंबर है 5, 8, 9.
अगर 2 से चेक करना है, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो तो वो 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। 2 से डिविजिबल है लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए, अगर होगी तो यस, अदरवाइज नो। नहीं है तो नहीं होगी। 3 पे आइए, 8 9 3, सारे डिजिट को प्लस कर दीजिए। 8 + 9 17, 17 + 3 20। क्या ये प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, सारे डिजिट को ऐड करना होता है। ओके, नाउ यू विल सी 4, 8 9 7 2। लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो यस, लास्ट की 4 डिजिट देखते हैं। 4 2 जा 8 या 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 3 18, यस, लास्ट की डिजिट डिवाइड हो रही है, लास्ट की डिजिट डिवाइड हो रही है। अगर लास्ट की डिजिट आपकी डिवाइड हो रही है, लास्ट की 2 डिजिट अगर डिवाइड हो रही है 4 से, तो 4 से डिविजिबल होगा वो नंबर। ठीक, 5, लास्ट डिजिट में आपका 0 और 5 होना चाहिए, लास्ट डिजिट में आपका 0 और 5 होना चाहिए, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर वो नंबर 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से डिविजिबल होगा। लिसन केयरफुली अगेन, वंस अगेन, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है और 3 से भी हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। अगर दोनों में किसी में से भी एक से हो रहा है तब भी डिविजिबल नहीं होगा। 2 से और 3 से दोनों से होना कंपलसरी है। 7 का देखते हैं, 7 1 2 ये नंबर है। ठीक, 7 का डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, 7 का लास्ट के डिजिट को उठाइए, डबल करिए, डबल करके क्या आएगा 4, गुड। रिमेनिंग डिजिट क्या है 71, गुड। 71 को 4 से माइनस कर देंगे। अब 71 को 4 से माइनस करेंगे, 4 से क्यों, डबल डिजिट को माइनस करते हैं, 4 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 67। क्या 67 7 से डिविजिबल होता है? होता है? नो, नहीं होता है, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। क्या होता है 7 का रूल, लास्ट डिजिट को उठाइए, डबल करिए, जो बचा है उससे माइनस करिए, माइनस करके जो नंबर आएगा उसको 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, खाना फिर बन जाएगा, खाना खा लीजिए। गरम गरम तो खाएंगे नहीं, ठंडा होगा तभी तो खाएंगे, फिर चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक, खाना खाने के बाद। ना अगर 8 से चेक करना है, 5 1 3 1, अगर 8 से चेक करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो नंबर 5 1 3 1 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज नो। 8 से चेक करना है तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट की 3 डिजिट। ओके, 9 सेम एज 3, सेम एज 3, 8 9 1, 8 + 9 + 1, सारे डिजिट को ऐड कर दो, 17 और 18, 9 8 17 + 1 18। अब 18 को 3 से नहीं डिवाइड करना है, 9 से हो रहा है ना, 9 से, इसका मतलब यस डिविजिबल है 9। उधर 3 से करना होता था क्योंकि 3 से चेक करना था, इधर 9 से डिविजिबल करना है तो 9 से चेक करना पड़ेगा। 10 लास्ट डिजिट शुड बी 0, आखिरी की डिजिट 0 होनी चाहिए, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 11 का रूल थोड़ा आपको कंफ्यूजन लगेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक नंबर है 8 9 5 2 1, ठीक है। अब इसमें जो डिजिट्स हैं जो ऑड जगह पे हैं, ऑड जगह समझते हैं, 1 3 5 7 9, जो डिजिट हमारी ऑड जगह पे हैं और जो डिजिट हमारी इवन जगह पे हैं, जैसे 2 4 6 8, जो डिजिट हमारी ऑड जगह पे है उसको अलग ऐड कर लो, जो डिजिट हमारी इवन जगह पे है उसको अलग ऐड कर लो। देखिए ऑड जगह पे क्या है, 8 है, ये ऑड जगह है, और ये क्या है इवन, क्या है ये, दिस इज इवन। तो 8 + 5 + 1, तो ये आपका आ जाएगा 8 + 5 13 + 14, ओके। और ये हो जाएगा 9 + 1 कितना आ गया, ये 10 आ गया, नहीं 9 + 2, 9 + 2 कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 14, तो 14 में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा। अब देखिए सर, बोलो सर ऐसे हो रहा होगा, क्या बोल रहे हैं सर, फिर से देखिए, आपको पहले ऑड और इवन डिजिट्स को ढूंढना है, जो डिजिट ऑड जगह पे हैं उनको अलग कर लो, जो डिजिट इवन जगह पे उनको अलग कर लो।
अलग करने के बाद ऐड कर लिया ऑड वाले डिजिट को, इवन वाले डिजिट को, जो ऑड इवन जगह पे है उनको ऐड किया। इवन जगह पे है, इवन प्लेस पे है, इवन डिजिट नहीं है, इवन प्लेस पे है, इवन जगह पे। ऐड करने के बाद बड़े नंबर को, छोटे नंबर को बड़े नंबर से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो जीरो आता है, अगर वो जीरो आता है तो 11 से डिविजिबल माना जाएगा। अगर ऐसा आता है जो 11 की टेबल में आए तो भी 11 से डिविजिबल होगा ये नंबर। अगर उसके अलावा कोई आता है तो 11 से डिविजिबल नहीं। फिर से देखिए, वो नंबर अगर जीरो आता है माइनस करने के बाद तो डिविजिबल माना जाएगा, या फिर 11 का मल्टीपल आता है, 11 की टेबल में आता हो, 11 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, वो माना जाएगा 11 से डिविजिबल। अगर उसके अलावा कोई आता है तो नहीं माना जाएगा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू, है ना? आपको समझ में आ गया हो जो मैंने रिकैप किया। If you have any doubt, we'll be discussing in the classes. So till then, bye bye, take care, have a nice day.